أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم فورتھ ویک ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے لیسن کا۔ الحمدللہ 3 ویکس ہمارے ہو گئے، تو ہم نے اسٹیٹس کا اسٹڈی کیا تھا ابھی تک۔ اس کو میں سلائڈ چیک کر لوں، اس کا ٹیسٹ لینا ہے آپ کا، لیسن نمبر 13۔ تو آج ہم کیا کریں گے، آج جب تک جتنا ہم نے پڑھا ہے نا اعراب کا، اس کا ریویو کریں گے یاد کمپریہنسو، تو تاکہ ایک دفعہ ہم سب کے ذہن میں نا وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں، اور اس کا ایک طرح سے ایک اسکیچ سا بن جائے ہمارے برین میں، اور اس کو پھر ہمیں یاد رہے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ایز اے سمری۔ تو جو چیزیں زیادہ یاد رکھنے کی ہیں وہ آج ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے شروع ہم نے کہاں سے کیا تھا کہ اسم عربک زبان میں 3 لفظ، 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کون کون سے تھے؟ اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے اسم کی ڈیفینیشن کی تھی کہ کوئی نام ہو سکتا ہے، چیز کا نام، آدمی کا نام، جگہ کا نام، یا کوئی صفہ ہو سکتی ہے، کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پروناؤن بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، وہ بھی اسم ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ وغیرہ وغیرہ میں شامل تھا۔ ہم نے پہلے پروناؤنس جو تھے اس میں ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا تھا نا، تو وہ بھی اسم کا ہی پارٹ ہے، تو وغیرہ وغیرہ کی کیٹیگری میں وہ بھی آتے ہیں۔ فعل ہم نے کہا تھا کہ وہ یا تو کسی زمانے میں وہ ہوتا ہے ہمیشہ، یا تو ماضی میں ہوگا، اس کو کوئی ایکشن ہو رہا ہوگا، یا حال میں ہوگا، یا مستقبل میں۔ اور حرف کی ڈیفینیشن ہم نے یہ کی تھی کہ حرف ہمیں میننگ اس کی آپ کنوے نہیں ہوتی انلیس کہ اس کے ساتھ بھی کچھ اور الفاظ لگے ہوئے ہیں، پھر ہمیں حرف کا سمجھ آتا ہے اس کا عبارت جو بھی سینٹنس کہا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے اسم کی اسٹڈی شروع کی تھی، اور اسم کا ہم نے کہا تھا کہ اسم کی اس کا 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ جینڈر 4 پراپرٹیز میں ہم نے کہا تھا کہ اعراب ہوتی ہے، اور نمبر 2 کیا تھا اس کی؟ جینڈر جینڈر۔ پھر ہم نے جینڈر ہوتا ہے، عدد، نمبر نمبر اور اور ٹائپ۔ تو کوئی بھی اسم ہم دیکھیں گے تو جب ہم یہ پوری اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں گے تو اینی اسم وی سی آن دا قرآن، تو ہمیں اس کی 4 پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی ہو جانی چاہیے۔ ہم اس کو ایک ایک لفظ کو پکڑیں اور اس کو ہم ڈیفائن کریں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی جینڈر کیا ہے، نمبر کیا ہے، اور ٹائپ کیا ہے اس کی۔ تو یہ چاروں چیزیں ہمیں اس ٹائم پہ ہمیں پریکٹس ہوگی، ہم ہر اسم کی آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے۔ پھر ہم نے اسٹیٹس پڑھنا شروع کیا تھا۔ اسٹیٹس میں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹس ہوتے کون کون سے ہیں، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ رفع ہوتا ہے، نصب رفع، ہوتا نصب اور رفع، جر۔ نصب اور جر۔ جار ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹس پتہ کیسے چلتا ہے، اسٹیٹس کا بغیر میننگ کے، بغیر جملے کو دیکھے، ایک لفظ کو دیکھ کے ہمیں اسٹیٹس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پھر مسلم چارٹ یاد کیا تھا، وہ سارا چارٹ، وہ بھی ہم اس کو اور ریوائز کریں گے ابھی۔ اس کے بعد نمبر 3 ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ہیوی اور لائٹ۔ پھر ہم نے لائٹ دیکھا تھا کہ لائٹ کیسے بنتا ہے، تو نون کی ساؤنڈ ہم ختم کرتے تھے تو لائٹ، مسلم اور یوزلی جو بائی ڈیفالٹ ہیوی ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی وہ لائٹ بھی آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے فلیکسیبلٹی پڑھی تھی کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں 3 کیٹیگریز میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایوری اسم کو، یا وہ فلی فلیکسیبل ہوتا ہے جو کہ میجورٹی آف دا ورڈز ہیں، اور کچھ پارٹلی پارٹلی فلیکسیبل فلیکسیبل ہوتے ہیں، یا نان اور کچھ پارٹی نان فلیکسیبل۔ ہوتا ہے اور فلیکسیبل ہوتے ہیں، نان پارٹی۔ نان فلیکسیبل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی تک یہ ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میپ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم نے کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور کیا چیز ہے، اور اس کی آگے ڈیٹیل بھی، جو ہم ابھی میں دوسرے پیج پہ جا کے اس کی اور ڈیٹیل ہم کرتے ہیں اس کی۔ تو اس میں ہم نے کہا ہم اسٹیٹس کو پڑھ رہے تھے نا، سب سے پہلے کیا تھا؟ اسٹیٹس، رفع، نصب، جر۔ اور آپ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اس میں
रफा होता है और नसब होता है, नसब और जार। और जर होता है। जार होता है। तो हमें इसकी डेफिनेशंस क्या है, तो हमें वर्ड जुमले से पता चलता है ना। तो फॉर एग्जांपल एक जुमला मैं लिख रहा हूँ कि बाप ने अप, अपने बेटे के उस्ताद से बात की। तो इस तरह सेंटेंस में होता है, तो आपने देखना होता है कि क्या एक्शन क्या हो रहा है। तो बात डूअर करना कौन है? एक्शन हो रहा है, एक्शन बात करना हो रहा है, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि डूअर कौन है उसका। जो डूअर होता है वो रफा स्टेटस होता है। तो कि कौन डूअर है बात बाप। करने का, बाप। 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 उसको हम कहेंगे कि ये रफा स्टेटस में है। और फिर नसब होता है डिटेल, यानी बाप ने क्या किया है, उस्ताद से अपने बात की है ना। तो उस्ताद से उस्ताद बात आप की। हमारा, या उस्ताद इस जुमले में नसब होगा। नसब। और इसी तरह अपने बेटे, या अपने को आप रहने दें अभी, इसमें बेटे के उस्ताद से, जार होगा बेटा। ठीक है ना। तो बेटा जर। जो है वो जार होगा। जर। तो इससे हमें सेंटेंस में पता चल जाता है कि कौन किस तरह से क्या रोल है, किस किस लफ्ज का क्या रोल है, किस इसम का क्या रोल है। लेकिन अरबिक में फिर हमने पढ़ा था कि हम बगैर जुमले को देखे हम बता सकते हैं कि स्टेटस कैसे पता चलता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कैसे पता चलाना, पता स्टेटस का पता चलाना, और आपका पता चलाना। तो उसमें हमने क्या कहा था कि हम उसकी साउंड से पता चल जाता है कि एंड पे क्या साउंड आ रही है, एंड कहाँ पे हो रहा है वर्ड। तो उसमें कहा था हमने कि रफा अगर होगा तो कौन सी साउंड आएगी, ऊ, दम्मा की। ओन या ऊ, पेश। ऊ जी। की, हाँ। पेश आ जाए रफा। नसब होगा तो क्या साउंड आएगी, जबर। दो दो जबर या जबर। एक जबर? या एक जबर हाँ, होगा। दर और एक जार जबर। होगा तो दो दो जेर या एक जेर या जेर। एक एक जेर? जेर। और फिर हमने इसको और डिफाइन किया था, क्योंकि ये वाला रूल किसके लिए था, वाहिद के लिए। तो हमारे पास एक से एक भी हो सकता है, दो भी दो हो या सकते हैं, और तीन प्लस तीन भी हो तीन। सकते हैं। प्लस। फिर जी। उसके लिए हमने एक टेबल बनाया था, मुस्लिम टेबल। तो उसमें हम रफा, नसब और जर इसी तरह से। तो रफा को हमने आर कहा था, नसब और जर। और फिर हमने कहा था कि सिंगल होगा तो मुस्लिम की हमने एग्जांपल ली थी। मुस्लिमुन। हम तो मुस्लिम उनकी मुस एग्जांपल, हम किसी चीज की भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी इसम हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हमें मुस्लिम उन ही याद रखना है हमेशा। हम यहाँ पे नासिर उन की एग्जांपल लेते हैं। नासिर उन रफा होगा, और नसब क्या होगा, नासिरानी। नासिरन, नासिरानी। नासिरन सिंगल में। हम्म। और और जर क्या होगा, नासिरिन। नासिरानी नासिरिन। नासिरूना। नासिरिन नासिरिन जर। होगा, नासिरिन हाँ जी, जर पहले होगा। सिर्फ वाहिद, वाहिद का हम हम्म। कर रहे हैं अच्छा। ना सबसे पहले, नासिरुन वाहिद को कॉल, नासिरन नासिरिन। नासिरिन, ये पहला हो गया। सेकंड कॉलम में था नासिरानी। नासिरानी। आनी लगाना था हमने, नासिरैनी नासिरैनी। नासिरानी, और फिर नासिरैन। नासिरैनी, नासिरैन। नासिरैनी। और फिर नासिरैन। हम्म। और प्लूरल में क्या था ये, नासिरूना नासिरीना नासिरिन। नासिरीना। नासिरूना और नासिरीना। नासिरीन। तो यहाँ रा के नीचे जेर आएगी अब, नासिरीन। ये हमने कहा था कि इस तरह से, तो एंड पे या तो साउंड होगी या फिर कॉम्बिनेशन होगी। और जब भी हमने आइडेंटिफाई करना है कॉम्बिनेशन, हमने पहले देखना है, पहले हमने देखना है कि कॉम्बिनेशन तो नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन है तो हमने उस कॉम्बिनेशन को पहले करना है कि वो आनी है या ऐनी है, या ऊना है या ईना है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर हम सिर्फ साउंड पे जाएंगे, वो वाहिद के लिए होता है। फिर हमने लेडीज फेमिनिन चार्ट किया था, उसमें फर्क क्या था, उसमें प्लूरल क्या में था? उसके फर्क आता है, जी। ठीक है ना। प्लूरल में फर्क आया था ना उसमें, थ्री जी। प्लस फीमेल में क्या फर्क था, मुस्लिम। नासी, नासिरातुन। मुस्लिमातुन। ना, ना, नासिरातुन नासिरातुन। नासिरातीन। नासिरातिन। नासिरातीन नासिरातीन। नासिरातिन और नासिरात। तो ये हमारा चार्ट था।
इसी तरह अगर हम वाहिद में देखेंगे फेमिनिन के लिए तो नासिरतुन, नासिरतन, नासिरतुन नासिरतिन, नासिरतन नासिरतानी, नासिरतिन नासिरतैनी, नासिरतैनी, नासिरतन और फिर नासिरातुन, नासिरातिन, नासिरातिन। तो ये हम्म, चार्ट हमारा, इसमें हमें कॉम्बिनेशन साउंड्स कौन कौन सी हैं, एक तो हमने जैसे ऊपर किया ये वाली, और कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या क्या है, आनी, आनी ऐनी 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 ऊना ऐनी, ईना ईना ऊना, ईना ईना ईना, हम्म, और ईना आतुन। आतुन आतिन 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 ये हमारे कॉम्बिनेशन है, ये 6 डिफरेंट। तो उसमें नसब और जर में ये रिपीट होते हैं, ऐनी और ईना और आतिन। तो ये स्टडी थी हमारी किसमें, कि पता कैसे चलाना है, आराब का पता चलाना। पहला था रफा नसब जर के कौन कौन से आराब। फिर हमने आगे उसके नेक्स्ट स्टडी क्या थी हमारी, अब लाइट वर्सेस हैवी। लाइट लाइट और लाइट हैवी हैवी और लाइट तो लाइट हैवी में हमने क्या कहा था कि सेम चार्ट होता है, लेकिन उसमें क्या उसकी चीज एंड पे नहीं तनवीन आनी उतर चाहिए, जाती है हाँ नून, तन एन की साउंड नहीं आएगी फिर। जी तो उसमें फिर नासिरुन तनवीन क्या हट बन जाएगी जाएगा, और हाँ जी, हाँ खाली एक एक तो हाँ नासिरू नासिरू बन नासिरा जाएगा, नासिरी हाँ नासिरा बन जाएगा, और नासिरी नासिर नासिरी बन जाएगा। और दो में क्या होगा, नासिरानी नासिरानी तो ना नून उसका हट जाएगा, तो नासिरा क्या नासिरा कहलाएगा, नासिरा नासिरा नासिरी नासिरा, नासिरी नासिरई 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 बन जाएगा। और नासिरू नासिर नासिर, और नासिरू 3 में क्या बन जाएगा, नासिरू नासिरू, नासिरी नासिरू नासिरी 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 नासिरी, नासिरी और नासिर। और फेमिनन जो चेंज होगा वो 3+ वाला फेमिनन, 3+ जी नासिरा तू नास नासिरातु नासिराती नासिरातु, नासिराती 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 नासिराती, और नासिरा। नास इसमें जो याद रखने वाली चीजें थी लाइट और हैवी में, वो क्या पॉइंट था कि बाय डिफॉल्ट इसम को हैवी आना चाहिए, हैवी ही आना चाहिए जी जब भी लिखा जाए ना, बाय डिफॉल्ट हैवी। तो कितनी रीजंस हैं जिसमें वो हम उसको लाइट करना पड़ता है, 4 वजूहात 4 थी हाँ लाइट होने में। तो अभी हमने पढ़ी नहीं है सारी वजूहात लाइट होने की, सिर्फ हमने थोड़ा सा टच किया था जब हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी थी कि नॉन अरब नेम्स लाइट होते हैं, उसमें तनवीन नहीं आती, और जगह के नाम जो होते हैं प्लेसेस, चाहे अरब हो चाहे नॉन अरब हो, वो यूजली लाइट होते हैं। तो ये हमने अभी तक इसके में पढ़ा है, वो भी और पार्शली 3 वजूहात है। हाँ, तो 3 बाकी लेटर इसकी, वाले जो होते हैं और 3 वाले तो आती एक्सेप्शंस होती है ना, उसमें वो मूव और लाइट नहीं होते, ब्लूथ वो हैवी आते हैं। तो उसमें भी लाइट हो सकता है, लेकिन वो किसी और वजह से लाइट होगा। तो ये चार चार वजह इसकी है। और फिर हमने एक और इसमें स्टडी की थी कि कभी कभी हैवी लाइट इररेलेवेंट हो जाता है, नॉट एप्लीकेबल होता है। तो अल अगर लग जाए, राइट, हम्म अगर अल नासिरू होता है तो वो फिर नॉन इसने नॉन एन ए बन जाना नॉन था। एक्टिव हाँ तो ना नॉन ये लाइट है एक्टिव और ना ये हैवी, हैवी भी नहीं, तो दोनों नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल। अल लगा हो तो फिर ये क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम ये कह सकें कि वो लाइट है या हैवी। तो ये एक हमने इसका पढ़ा था। तो ये लाइट, इसका यूजेज हुआ करेगा, आप देखेंगे कुरान में कि लाइट आएंगे काफ़ी। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे, उसमें भी आपको नजर आएंगे कि लाइट होता है, लेकिन उसकी वजह होती है। वजह भी आपको पता चल जाएगी इस वीक में एंड तक, एक और वजह पता चल जाएगी लाइट होने की। तो ये हमारा मैप बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं सही तरह से। बाकी आप बाद में जाके देख सकते हैं और डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें ये हैं। और चौथी चीज़ क्या थी,
फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक जो है ना वो असल में है कि आप वर्ड जो यूजुअली जो होते हैं ना 97% वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। फुली फ्लेक्सिबल मीन के हम उसको तीनों आराब लग सकते हैं इसमें। हर तरह की साउंड में वो लिख सकते हैं आप। जैसे हम नासिरुन भी लिख सकते हैं, नासिरन भी लिख सकते नासिरन, हैं, नासिरिन। नासिरिन भी लिख सकते हैं, या हम नासिरू भी लिख सकते हैं सिर्फ पेश के साथ, नासिरा भी लिख सकते हैं और नासिरी भी लिख सकते हैं। और ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है सिंगुलर पे, तो सिर्फ वाहिद के लिए होता है ये। जमा और दो वाला और जमा वाला उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होते कि फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमेशा उसी तरह से ही होंगे। सिर्फ वाहिद पे ये एप्लीकेबल होता है, तो सिर्फ वाहिद के लिए। और इसमें आप इसको तो अगर जब फुली फ्लेक्सिबल अगर लफ्ज है तो उसको हमें कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है ना वो फुली फ्लेक्सिबल। इसके बाद पार्टली फ्लेक्सिबल था, तो एक फुली था, ये फुली हो गया। दूसरा था पार्टली। पार्टली में क्या था कि कुछ लफ्ज हैं जो वो तनवीन नहीं आती उस पे, वो हमेशा आपको लाइट लिखने पड़ते हैं। जैसे उसमें जो बड़ी कैटेगरी जो थी वो थी नाम। इब्राहिम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसे इब्राहिम का नाम है इब्राहिम, इब्राहिम तो वो इब्राहिम लिख इब्राहिमू, सकते हैं। और इब्राहिम। ये इब्राहिमू इब्रा लिखा जाएगा, ये इसमें इब्राहिमुन नहीं होगा। इस तरह यूसुफ, यूसुफुन नहीं होगा, यूसुफ होगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि चार प्रॉफिट हैं जो अरब हैं, शुआइब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद ये चार जो सल्लल्लाहु फुली अलैहि वसल्लम। फ्लेक्सिबल नाम आते हैं इनके। बाकी शामिल। दो जो फुली फ्लेक्सिबल आते हैं वो लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम है, लेकिन वो एक्सेप्शन की वजह से, क्योंकि वो थ्री लेटर हैं, वो नॉन अरब लेकिन थ्री लेटर है। तो मेनली जो इसमें हमें जो चीज याद रखने वाली है ना वो ये है कि इसमें रफा में हम पेश के साथ लिखते हैं, और नसब और जर दोनों में हमें लिखना पड़ेगा इसको जबर के साथ, जबर इसमें जेर नहीं जबर आती। के साथ। ये चीज जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप देखेंगे ना, आप कुरान पढ़ रहे होंगे, आप कहेंगे कि अच्छा ये इब्राहिमा है, लेकिन ये जर क्यों नहीं है, ये नसब क्यों लग रहा है मुझे। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि इब्राहिम माँ नसब में भी इब्राहिमा ही होता है, जर में भी इब्राहिमा होता है, तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो ये चीज याद रखने में हमें उस टाइम पे काम आती है कि अच्छा ये तो पार्टली फ्लेक्सिबल है, इसमें तो जेर आनी नहीं है। तो इसलिए हमें जहन्नम भी और इब्राहिमा इस तरह के नाम जो हैं वो जेर के साथ आएंगे ही नहीं। तो अगर जर होगा तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पता लग जाएगा देखने से कि अच्छा ये जर है, फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये इब्राहिमा और इब्राहिमा दोनों जबर के साथ क्यों है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो हमें याद रखनी है। जैसे अगर लिखा हुआ आएगा नारू जहन्नम है, तो हम कहेंगे कि जहन्नम तो जर होना चाहिए था, क्योंकि ये ऑफ की रिलेशनशिप बनती है ना, जहन्नम की आग। तो क्यों नहीं है। जबकि अगर हम लिखते आ, बैतुल्लाह ही, तो वहां पे अल्लाह ही लिखा जाता है जेर के साथ, तो हम कहेंगे कि ये जबर क्यों आई है। तो अगर हमें ये नहीं नॉलेज होगा, इसीलिए ये पढ़ाया जाता है कि हम कंफ्यूज ना हो कि ये जर है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि ये जर है। तो कि उस सूरत में क्या होगा कि देखने में वो जर नहीं लगेगा, लेकिन होगा वो जर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स में ये चीज याद रखने वाली है ये। तो और इसके बाद जो फुल नॉन फ्लेक्सिबल है वो इजी है। कि नॉन फ्लेक्सिबल में क्या होगा, रफा नसब जर तीनों सेम होंगे। जी। रफा नसब और जर तीनों इक्वल होंगे, और सिर्फ हमें देखने से अब सेंटेंस में पता चलेगा कि ये रफा है या नसब है या जर है। स्टेटस होगा उसका रफा नसब जर, ये नहीं है कि वो जर हो ही नहीं सकते, वो जर होंगे, लेकिन हमें नजर नहीं आएगा। हमें एनालाइज करना पड़ेगा सेंटेंस को, फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो जर। इराब कौन सा होगा उसका, जब्बर होगी कि पेश होगी? वो डिपेंड करता है, कोई भी हो सकती है। जैसे लफ्ज है ना ईसा, जी। इसमें तो खड़ी जबर आती है, आ की साउंड आती है। हम्म। दुनिया भी ऐसे ही है,
या हुदन भी वर्ड है। अब हुदन लगता तो फुली फ्लेक्सिबल है, लेकिन हुदन का रफा नसब भी यही होता है, जर भी ये होता है, नसब भी यही होता है। हुदुन नहीं होता या हुदिन नहीं होता है। तो हुदन भी इसी तरह है, तो कुछ भी आ सकता है। वो वर्ड हमेशा सेम रहेगा। जैसे हा उलाई, इसमें तो जेर आ रही है ना एंड पे, लेकिन है जी। वो नॉन फ्लेक्सिबल, उसमें सेम। तो कोई भी हो, वो बस रहना उसने सेम है। जैसे पेश ही वाले वो, भी हो सकते हैं। हाँ जी, पेश वाले भी हो सकते हैं। हम्म, तो पेश पेश वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन हम्म, हमें वो वर्ड का पता चल जाएगा ना कि नॉन फ्लेक्सिबल है, तो फिर हमें हमारी वोकैबुलरी में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा हमें कौन कौन से नॉन फ्लेक्सिबल हैं। फिर हमें पता हम्म, चल जाएगा कोई भी हो सकता है, एंड पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। हम्म, तो ये जो पेज है ना, ये हमारे जो है पूरा, ये हमारे माइंड में होना चाहिए इस तरह से कि पहले जो पहली मैंने आपको स्लाइड दिखाई, और फिर उसकी ये डिटेल कि अच्छा फुली फ्लेक्सिबल क्या, वो रफा पहले स्टेटस क्या क्या है, क्या होती है उसकी डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे फिर कैसे स्टेटस को बताते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बगैर मीनिंग के, बगैर सिर्फ वर्ड को देख के। फिर हमने लाइट और हैवी होते हैं उसके दो वर्जन्स। और चौथी चीज थी फ्लेक्सिबिलिटी के, फ्लेक्सिबल। फुली फ्लेक्सिबल होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स, कुछ पार्टली होते हैं और कुछ नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये चीजें हमने मुकम्मल तौर पे ना इसको इसको एक तरह से अपने माइंड में बैठा लेना है, ताकि हमें बार बार नोट्स ना देखने पड़े, और हम जब भी एनालाइज करें, हम पढ़ें, हमें फौरन पता चल जाए। हम्म, तो इसकी एक्सरसाइज, एक सूरत सूरत फील देखते हैं उसमें। तो इसमें ये वाइट कलर के सारे जो है ना, ये इसम। अब इसमें पहला इसम है रब्बू का, लेकिन अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दो वर्ड्स हैं, ये रब्बू अलग है, का अलग। और हम्म, का हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो रब्बू, हम्म, तो यहाँ पे अगर हम देखें रब्बू, पहले तो हम स्टेटस इसका बताएंगे, स्टेटस क्या है। रफा। रफा, ऊ की साउंड आ रही ना, रफा। तो कॉम्बिनेशन तो हम्म, नहीं है, ऊ सिर्फ ऊ आ रहा है। हम्म, और और हम इसमें लाइट और हैवी भी बता सकते हैं, लाइट है या हैवी है। लाइट। लाइट है, तो ये लाइट है। रब्बून होना चाहिए ना, ये स्टैंडर्ड हम्म, अरबी का वर्ड है, रब्बुन हम्म, स्टैंडर्ड होता है। हम्म, लेकिन यहाँ पे लाइट इस्तेमाल हुआ है, रब्बू, तो लाइट इस्तेमाल हुआ, तो रफा भी हमें पता चल गया, लाइट भी पता चल गया। हम्म, और हमने प्रोनाउन पढ़े थे का। का। जी। का हम्म, का का क्या, किस सेंस में आता तो है ये। अब सेकंड पर्सन का। अं, यू अंता यू अंता के लिए आता है। अंता के लिए आता है, ठीक है ना। अंता, अंता का क्या रफा जार होता वर्जन अंता होता है, और हाँ, नसब और जार है। वर्जन का नसब होता जार है। जो का होता है। तो का यहाँ पे होता या तो ये नसब है या जार है। ये भी हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट है। वर्ड है बी असहाबी। असहाबी, ये रफा है या लाइट जार है। है या नसब है। ये लाइट है और ये जर है। जार, ये जार है। जर है, ये जर है। असहाबी, ई की साउंड आई एंड पे, कॉम्बिनेशन नहीं है हाँ, ये, तो ये जार हो गया। जार और है। क्योंकि ई की साउंड है, इन नहीं है, तो रफा है, अल भी नहीं लगा हुआ। हम्म। अल फीली, अल्फीली तो नॉन। अल्फीली एन ए एन ए है। इसकी, है ना। हाँ, हाँ जी, लाइट और हैवी तो इसका एन ए हो गया है, जी। हाँ। लेकिन इसका स्टेटस क्या है। ये भी नसब। जर है। ये भी नसब जार है। नस्ब और जर है। है, हाँ जी, हाँ, ये अल फीली जर भी है, जार। तो इस तरह जार है। से जर हम है ये ये। आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरह जब हम और आगे पढ़ेंगे, तो फिर हम इसकी चारों प्रॉपर्टीज हम बता सकेंगे एवरी एवरी इसम की। अभी तो हमने सिर्फ हम्म, स्टेटस पढ़ा है ना। हम्म। इसी हम्म, तरह आगे देखें, ये कईदा, होम, कईदा अलग, कईदा होम, लाइट है और कईदा भी लाइट लाइट है, है। यहाँ पे देखिए। और नसब है। यहाँ पे नसब इस्तेमाल हुआ है और लाइट इस्तेमाल हाँ, हुआ है। हम और भी वो होम, हुम आ, भी, हुम हुमा हुम जो है ना, ये हाँ जी, का फॉर्म आएगा। हाँ, और थर्ड हाँ, पर्सन। और ये जर। इसका होम का रफा भी होम नसब होता और है, जार और दोनों हो नसब सकते और हैं। जर भी होम होता है। जी, और नसब क्योंकि जार ये दोनों हो अटैच है सकते ना इसके साथ, ये साथ जुड़ा हुआ है, दाल के साथ हैं। जोड़ नहीं सकते हम हम्म, फिजिकली, लेकिन ये एक इकट्ठा एक लिखा हुआ है, कईदा होम। तो इसका हम्म, मतलब है ये नसब और जर वाला यूज हुआ हुआ है, हम्म, ये होम दूसरे वाला नहीं है, ये कईदा होम इकट्ठा उसके साथ अटैच हुआ हुआ है, तो ये हम्म, नसब और जर। इसके बाद फी हर्फ है तजलीलिन,
तौलीलिन, जर है, अब ये साउंड से पता चला हमें जर है, और ये और ये लाइट है हैवी है, हैवी है। लाइट नहीं ये हैवी है, तो यहाँ पे नॉर्मल इस्तेमाल हुआ है जैसे कि होना चाहिए, तो इस यहाँ पे कोई रीजन नहीं थी उसके लाइट होने की, इसलिए उन्होंने इसको हैवी लिख आया है ये यहाँ पे। वारसला अलैहिम तैरन, नसब है और हैवी है। ये नसब है और हैवी। हैवी है तैरन, और जब भी डबल जबर आती है ना तो ये अलिफ साथ आपको लगाना पड़ता है, ये जी। फॉर्मेलिटी है, लिखने का तरीका है। अबाबीला, ये लाइट है और नसब ये है। लाइट है और ये नसब है। नसब अब है। अबीला, तरमीहिम बिहिजारतिन, जर है और बे हैवी है। अब यहाँ पे हैवी इस्तेमाल जर। हुआ है, और यह है। इन की साउंड आ रही है तो ये जर। सिज्जिलिन, ये भी जर है। हैवी है और जर ये है। भी हैवी उसी तरह, हैवी और जर है ये। इन की साउंड आ रही और जर, तो ये जर है। आइडेंटिफाई यहाँ भी हम कर लिए। हम्म, लास्ट आया है कास्फिम माकूलिन, तो हम पढ़ते तो माकूल है ना, लेकिन ये तनवीन जो भी होती इसकी हरकत होती है ना वो लिखी होती है आयत के एंड पे, तो वो उससे पता चल जाता है क्या है। आस्पिन भी वो है, आस्फिन भी जर हैवी है और जर और है। हैवी, हैवी और और जर है। माकूलिन भी जर जर और है हैवी ये। और जर। और हैवी और जर है। तो इसमें अब मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स जो थे ना वो जर आए हैं इस सूरा में। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप भी कोई एक आज छोटी सी सूरत देख लें आखिरी 10 में से, उसको आप खुद से भी कर सकते हैं कि अच्छा आइडेंटिफाई करें जो जो हमने पढ़ा है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं अब, तो उसमें वो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हम बिल्डअप करेंगे नॉलेज। तो कल से हम थोड़ा सा अभी हमने ये थ्योरेटिकल पढ़ा है ना आराब, कल से ज़रा इंटरेस्टिंग थोड़े से हरूफ भी पढ़ेंगे, और फिर हर हरफ हरूफ का इसम पे उसका असर भी पढ़ेंगे कि क्या असर होता है इसम के ऊपर। तो ये कल के जो तीन आगे नेक्स्ट 3 डेज है ना, तो इसमें हम इसी तरह एक से ज्यादा वर्ड्स को हम एनालाइज करेंगे कि जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। तो ये कल नेक्स्ट 3 लेसन जो है ना वो उस पे होंगे, फिर हम उसके बाद उसी की प्रैक्टिस करेंगे फिर एक और वीक। लेकिन ये चीजें आप बिल्डअप हम करेंगे अपना नॉलेज ना इसके ऊपर जो हमने अभी तक लर्न किया, तो इंशाल्लाह। तो कल काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, कल से ना कल 3 दिन है, तो ये चौथा वीक है हमारा, तो आई थिंक एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल नाउ कि समझ आना शुरू हो गई होगी अब सबको। इंशाल्लाह ऐसे ही अब आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे अपने नॉलेज को और बढ़ाते रहेंगे, फिर हम एक एक लफ्ज से 2 पे जाएंगे, फिर 2 से 3 पे जाएंगे, तो फिर पूरे ट्रांसलेशन भी फिर हम करनी शुरू कर देंगे फिर आयात की, छोटी छोटी आयात की इंशाल्लाह। चले क्वेश्चन कोई है आज? बस मैं ये पूछ रही थी कि कायदा हम आपने कायदा हम बताया ना, तो चाहिए। कायदा तो हमने हाँ जी, लिखा जी, नसब है और लाइट है। हाँ हुम जी, आपने यही वाला mark ये हम जो है ना ये तीसरी नस्ब और फॉर्म। जार वाला है। अच्छा ही नसब और हाँ जी, क्योंकि वो तीनों सेम होते हैं ना, होम का जी 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 ना जी। रफा नस्ब भी होम ही होता है, और हम्म। अटैच भी होम ही होता है, तो इसलिए ना ठीक। इसमें आपको वैसे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये अभी हम जब ये हम्म, वीक के एंड तक आपको ना 3rd डे पे इसका भी लेसन है कि ये आपस में रिलेशनशिप क्या है इनकी, तो फिर वो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे अटैच प्रोनाउन कैसे है। ठीक। क्योंकि दाल है ना एंड पे, तो दाल में हम अटैच कर नहीं सकते, जहाँ पे देखें उसने हम्म अटैच कर दिया उसको हिम को अला के साथ, लेकिन यहाँ पे हम्म, दाल है ना तो दाल के साथ तो नहीं हम लिख सकते ना होम करके ऐसे, नहीं क्योंकि दाल तो नहीं आएगी ना, वो तो या नहीं। काफ होगा या जो भी कोई और वर्ड होता है। हम्म जैसे मैंने कहा था ना दाल होता है, जाल हम्म होता है, रा सा वाव, इसके साथ हम अटैच नहीं कर सकते कोई चीज को। हम्म तो ऐसे कर जैसे हम दरवाजा हम्म लिखते हैं ना दरवाजा, तो ये सारे अलग अलग लिखने पड़ते हम्म हैं, हम साथ जोड़ नहीं सकते। हम्म, यूजली हम क्या करते हैं किताब हम नहीं। देखें सब कुछ जोड़ जोड़ के ले लेते हैं, काफ ता ते और अलिफ हम्म हमने जोड़ दिया, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं लेटर्स हैं जो हम जुड़ नहीं सकते आपस में। तो ये दरवाजा में देखना हम्म सारे इस्तेमाल हो गए, दाल भी है, हम्म रा भी है, वाव भी है, जा भी है, अलिफ भी है। हम्म अलिफ भी कई दफा ऐसे ही होता है कि आप उसको जोड़ नहीं सकते, लेकिन अरब ने जोड़ने का तरीका निकाला हुआ है एक, वो क्या करते हैं, और यहाँ पे खड़ी जबर डाल देते हैं,
پھر آپ جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس طرح لکھتے ہیں الف کے ساتھ. تو الف کو وہ انہوں نے طریقہ ہے ان کا کہ جوڑ سکتے ہیں کھڑی زبر لگا کے، لیکن یہ دال را واو زا زال اس کو نہیں ہم کر سکتے، یہ جو ہے نا اس کو نہیں جوڑ سکتے. جزاک چلیں جزاک اللہ. چلیں اب دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کل نیکسٹ لیسن میں. السلام علیکم. یہ کیا یہ ہمیشہ کیا اٹیچ پروناؤن جو ہوں گے وہ نصب و جر ہوں گے کیا؟ ہاں اٹیچ پروناؤن ہمیشہ نصب اور جر ہوگا. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الرحمن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم. واقتل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم. اللهم احفظنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.